જય સચ્ચિદાનંદ. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહ મેં નિહાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી, જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. જ્ઞાની પુરુષની પાસે મુક્તિની છાની વાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહ મેં નિહાળી. આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. સતતમાં સમાવો આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. વાંધાને વચકાસહુ વંદાને વજ્રકાશ અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી. અજ્ઞાન માન્યતાઓ એને દીધી ઉડાવી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay. ખુશી નંબર 1. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો.
મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Anuj, number 2. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Chennai, 3. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવનવાદ, અપરાધ, અવિનય ના કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Kushi, number 4. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે અભાવ તિરસ્કાર ક્યારેય પણ ન કરાય, ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Chennai, number 5. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માની સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંતીની ભાષા ના બોલાઈ જાય, ના બોલવાઈ જાય કે બોલવાના પ્રત્યે ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીની ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. Anuj, number 6. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેવદારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી, પુરુષ કે નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધી કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ યા વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાય, ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Pune, दादा भगवान, मुझसे किसी भी भावना हो ऐसी शक्ति आप मुझे दे। समृद्ध भोजन मुझसे लिया जाए ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। Kushi, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ, જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય, ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Anuj, હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. आपको अंजलि, आपको आता है गुजराती? हाँ? हाँ? मैं सीख रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी अभी, हाँ? सीख रही हूँ रजनी दादा थोड़ी थोड़ी अभी. अच्छा अच्छा, और सभी गुजराती सीख जाने का. जय सच्चिदानंद केशवान जी. જય સચ્ચિદાનંદ. કેમ છો? ઓકે, મજામાં. કેમ છો તમે? એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ. વેરી ગુડ. તો ત્રિમંત્ર બોલાય, બાળકો ફોલો કરેंगे. હા. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવઝ્ઝાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોહે સવ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચનમુક્કારો, નમસ્કારો સવ્વ પાવપણાસનો, સૌપાવપણાશનો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, મંગલાણં ચ સર્વેસિમ,
परमं हवै मंगलम। मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद चिनाय। सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी सागर मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्तमान वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल करो जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। सेवा। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनुज। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे। दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे। फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, सेवा हिंदी। जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग है, हितक्षिभ अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल है, हितक्षिभ रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, हितक्षिभ टेम्पररी है। जय सच्चिदानंद। उन्हें गुजराती। શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, આમ તમે જુદા છો, વિશાળ જુદા છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, વિશાળ રિલેટેડ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, વિશાળ ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। ओके, आज रिपोर्ट किसने नहीं लिखा भेजा? कुशाल, करिश्मा, ओके। थी, आपने क्यों नहीं लिखा रिपोर्ट? मैं बाहर गया था ना, इसलिए। और कुशाल? मैं भूल गया लिखना। क्या? मैं लिखना भूल गया। भूल गया। और दूसरा कौन था? ओ, खुशी तो कुछ करिश्मा तो नहीं करेगी कभी। ओके, तो भूल गया तो इसलिए ये तो दो चीज होता है ना, आइदर इज इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट। भूलने की बात होती ही नहीं। आपको ऐसे लगता है इम्पोर्टेंट नहीं है? कुशाल, क्यों इम्पोर्टेंट है? दर्शना, आपको मैंने पूछा हमने।
जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो लिख दो आपका रिपोर्ट में, ओके? और मच भेजना अभी, ओके? जिसको इम्पोर्टेंट नहीं लगता है उसका मालूम नहीं होगा क्या फायदा होगा तो मत करो, चलेगा कुशाल? हाँ हाँ, पप्पा को मम्मी को बोलना हमको इंटरेस्ट नहीं रिपोर्ट में नहीं लिखेगा तो चलेगा, और पप्पा मम्मी जो बोलेगा और हमको मंजूर है, ठीक है? बताएगा? मम्मी उधर है? हाँ, नहीं ओके, हमको अब भेज देना क्या पप्पा मम्मी क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है तुम नहीं लिखने का। तीर तो बाहर गया था तो कितना बजे बाहर गया था तीर? हाँ, जय सच्चिदानंद में 6 बजे बाहर गया था और 5 बजे स्कूल से आया था। कितना 6 बजे स्कूल से आया था? नहीं, 5 बजे और 6 बजे गए थे। हाँ तो 5:30 बजे रिपोर्ट नहीं भेज सकते? हाँ, तो भी आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगता है? इतनी दफा आप तो पुत्र ने बोला कि रिपोर्ट का कितना इम्पोर्टेंट, ओके? और आज रिपोर्ट में किसने नहीं लिखा है और अपना गोल हेल्थ स्टडी के लिए नियम, ओके? क्यों खुशी आपने क्या बताया था कल? वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, नियम भी नहीं इम्पोर्टेंट है नहीं है। इम्पोर्टेंट। देखो, अब मेरा रूल अभी है कि जो आप नहीं लिखते तो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम वापस नहीं पूछेंगे, ओके? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिपोर्ट और योर नियम, ठीक है? सब बच्चों, लक्ष्य आपने क्या बताया? मैं ये बोल रहा था क्या बोला? वो मैंने अपने गोल नहीं लिखे हैं। हाँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके? अभी से योर रूल है, आपको यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ नहीं लिखने का तो मत लिखो, ओके? मंजूर है सबको? खुशी मंजूर है? दर्शना खुश ओके मंजूर है? कोई नहीं बोलता नहीं है। तो लिखो। और दर्शना, अभी आप टीवी का रिपोर्ट भी अभी नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते? हमको बताने का नहीं है? दर्शना, हाँ, आपने लिखा था रिपोर्ट में, नहीं क्यों? टीवी आधे घंटे देखा था। हाँ, मैंने टीवी आधे घंटे देखा था। हमको कैसे मालूम पड़ा? आपको नहीं बताने का मत लिखना बताओ, भूल ये सब स्टैंडर्ड रूल है, ओके? आप तो यू मस्ट राइट डाउन, और जो आप तो पुत्र बताते हो यू मस्ट राइट डाउन, अदरवाइज यू आर नॉट इम्पोर्टेंट टू यू, देन ओके? ओके, कल हमने अभी कैसे दादा अभी 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 हम हेल्थ पे का बारे में बात करते हैं कल, तो उसमें क्या वीकनेस है, तो कल सबने बताया कि उठ नहीं पाते हैं, तो आज अभी सेकंड वीकनेस, हेल्थ को 3 डिपार्टमेंट है, ओके? उठने का, खाने का, एक्सरसाइज करने का, तो आज खाने का कदा खाने में क्या वीकनेस है खुशी? तो 7:30 बजे नहीं खा सकती ऐसा है ना? नहीं, दादा ने ना बोला है कि 7:30 बजे को 8:15 बजे खाओ तो लेट आ सकते हैं, तो पद नहीं खा सकते, ऐसे नियम है? नहीं, तो अभी से मैं जल्दी खा लूंगी। हमने ऐसा नहीं बात पूछा, आपका नियम, ओके? हेल्थ में क्या आप खाने में क्या आपका गड़बड़ होता है?
और घर में खाना लेट बनता है। नहीं, मम्मी तो, इसकी मम्मी तो बहुत अच्छी है। नहीं, लेट बनता है वो तो ये इसीलिए। लाडली है, लाडली बोलेगा 7:30 बजे को 7:30 बने आज दे देगा मम्मी। देखो हाँ बोलती है। ओके बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ जय सच्चिदानंद। खाने में तो मेरी वीकनेस नहीं है, मम्मी जो देती है तो वो सब खा लेती हूँ। ओके तो टेस्ट मम्मी को एवरीडे पूछते हैं? टेस्ट पूछती नहीं हूँ, पर मुझे नहीं पता नहीं नहीं चलता नहीं है आपको कि नो 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 नो, हम पूछते हैं उसका ही जवाब देने। नहीं तो वो वीकनेस नहीं होता है। होता है। और अभी वो अभी अभी मेथी खाते हैं आप? क्या? मेथी खाते हैं आप अभी? हाँ खाती हूँ। ओके चिनाय। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरी हेल्थ में जो जो मम्मी खाना देती है वो सब कुछ खा लेती हूँ, बट कभी कभार जब लौकी की सब्जी आती है तो मुंह बिगड़ जाता है, बट में मैं प्रेयर करके 7 कलम बोल के खा लेती हूँ। और मेरी खाने की वक्त ये वीकनेस है कि मैं जब कोई बीच बात करता है या मेरी 2 बहनें बात करती है तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है और मैं शांत रहने के लिए हर वक्त कहती रहती हूँ, तो बीच बीच में मैं बोलने लग जाती हूँ। और मैं मम्मी को दूसरा वीकनेस है कि मैं मम्मी को टेस्ट पूछना भूल जाती हूँ। ओके वो भी ये भी बता रहेगा खाते समय बोलने का और टीवी का वीकनेस है कि नहीं? खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद। मैं मम्मी से खाते वक्त मैं मम्मी से पूछती नहीं हूँ क्या डाला है, और मैं टेस्ट नहीं लेती हूँ, मैं बातें करती रहती हूँ खाने के समय। और टीवी टीवी? नहीं टीवी नहीं देखती। हाँ तो टीवी बोलो नहीं। ना, बोलो बोलो। ओके पिताक्षी बा। जय सच्चिदानंद। मेरे खाने में फर्स्ट वीकनेस ये है कि मैं मम्मी को टेस्ट नहीं पूछती हूँ और मैं मम्मी के साथ ज्यादा बातें करती हूँ जब मैं खाना खाती हूँ। और जब मम्मी दाल दाल मुझे पीने के लिए देती है तो तब थोड़ी मम्मी के साथ कच कच हो जाती है कि मम्मी नहीं पीनी है, पर लास्ट में पी लेती हूँ। और टीवी बोलने का? टीवी नहीं देखती हूँ। बोलने का? Why I have to ask all this question? आप बताइए ना वो, हम बता। मैं खाते वक्त टीवी नहीं देखती हूँ। बातें की बात है। स्कूल की बातें करती हूँ हाँ मम्मी तो के साथ। वो बोलो ना, कितना डिफिकल्ट है ये सब बोलने का। दर्शना आपको सर्दी है कि उधरस है? सर्दी है। सर्दी, ओके तो बोल सकते हैं आप। हाँ बोलो। जय सच्चिदानंद। मेरे खाने में वीकनेस नहीं है और मैं मम्मी से टेस्ट पूछती हूँ हर रोज, और मैं टीवी लिमिटेड देखती हूँ। खाते समय? नहीं, खाते लिमिट में देखती हूँ टीवी पर, कभी कभार। ओ ओके। और एक और चीज पूछनी थी कि वो सरसों का साग कौन से रस में आता है? और अभी दीपक दादा को बाद में पूछना। ओके और केशव दादा को पूछना बाद में। कुशाल ने नहीं भेजा ये। ओके दक्ष आपने भी नहीं भेजा, आरुष ने नहीं भेजा। ओके दादा मैंने भेजा है। ओके बोलो तो आप रिपोर्ट दे सकते, बोलो। जय सच्चिदानंद। खाने में मेरी वीकनेस ये है कि मैं करेले की सब्जी नहीं खाता और मैं टीवी देखते भी नहीं खाता और खाते खाते बोलता भी नहीं।
ओके, और आप मम्मी को टेस्ट पूछते हैं? नहीं। ओके, बोलता हो ना। दक्ष, आपने रिपोर्ट नहीं भेजा? मैंने भेजा है। ओके, तो आप बोलो। मैं गिलकी की सब्जी और दालें नहीं पीता हूँ और खाते खाते मैं टीवी देखता हूँ। क्यों? आप टीवी को खिलाते हैं? आप टीवी आपको खिलाते हैं? नहीं। तो वो भी बताएगा कैशो दादा उसका क्या होता है। और दर्शना, अपना मम्मी आ गया? नहीं, तो आप किसके साथ बात करते थे? मम्मी अभी आई थी, चली गई। तो आप देखते तो मम्मी उधर बैठी है ना? अभी नहीं बैठी है, चली गई। ओके, दीपकान जी। रश्मि दादा, हाँ, बोलो। वो कल दीपक दादा ने मुझे एक होमवर्क दिया था कि हाँ हाँ, ये बोलो, ये बोलो, यस यस। लौकी में विटामिन बी और सी में बहुत रिच है, और जो भी हमें कफ और फीवर कहीं भी पेन होता है तो वो लौकी खाने से सही हो जाती है। और उसमें 15 कैलोरीज है, बहुत सारे कैलोरीज भी है, और 94% वाटर भी है, और वो ग्रीन वेजिटेबल है, इसलिए वो हमारी स्किन के लिए बहुत हेल्दी है, जिससे वो ग्लो करता है। तो आपने सब बताया तो आपको तो नहीं मांगता है ना ये बेनिफिट, राइट? नहीं, मैं आज से खाऊंगी। थैंक यू। आरुष, कल मेथी का बोलने का आप क्या बोला? नहीं, कारेला, सॉरी, कारेला का बोलने का आप फायदा कारक है कि नहीं फायदा? आप नहीं, आप खाते नहीं है ना, राइट? केरला, राइट? करेला हाँ क्यों? हाँ, क्यों वो फायदा कारक नहीं है इसलिए? मुझे नहीं पसंद। नहीं, हमने ऐसा नहीं पूछा। नहीं है। तो दादा ने क्या बोला का नहीं पसंद का पसंद करने का? वो भी केशव दादा बताएगा। ओके, दीपक दादा। या हेनरी थोरो ने बताया है कि when the food you eat is also your medicine, when the food you eat is also your medicine, you may consider yourself very lucky. ये फूड को, खाने को मेडिसिन की तरह लेना है, और मेडिसिन की तरह जैसे विटामिन, मल्टीविटामिन टैबलेट नहीं लेते सब लोग, लेते हैं। तो ये फूड खाना है, वो दवाई है, और दवाई में चॉइस होती है। ये दवा कड़वी तो मैं नहीं खाऊंगा, ये दवाई मीठी है तो मैं पीता ही जाऊंगा, खाता ही जाऊंगा। दवाई तो दवाई का ही काम करता है ना। हाँ। तो उसमें अच्छा बुरा लगने का, उसके अच्छा बुरा लगने की कोई गुंजाइश खड़ी होती है, होनी चाहिए। और जो हम खाना नहीं खाते हैं, फिर उसके संबंध में हमें गोली में वो सब तत्व लेना पड़ता है। तो अभी खाने को ही हम मेडिसिन बनाएंगे, तो आप सोचो। एक और बात जो दादा भगवान ने बताई है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की शुरुआत खाने के विवेक से होती है, और अध्यात्म की पूर्णता आहार के संबंधी पूर्ण जागृति होती है, 6 रस की जागृति होती है। अभी इसमें से ये समझ के आपको अंदर से तय करना है। अभी आप लोगों की उम्र बहुत कम है, इसीलिए अच्छा बुरा करके आप कर सकते हैं, माता पिता भी आपको अलाउ करेंगे। लेकिन अगर अभी से आप ढंग से खाएंगे तो आपकी सेहत कैसी रहेगी वो आप सोचो। समझ में आया? हाँ। अगर अभी से आप सब कुछ खाते हैं
अच्छे से खाते हो तो आपकी हेल्थ बनी रहेगी, हेल्थ बनी रहेगी तो फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली सब तरह से वो ठीक उसका परिणाम आपको मिलेगा। तो ये समझ समझ करना है और उसके विरुद्ध नहीं जाना है। करेला नहीं अच्छा लगता है तो बोलने का नहीं, मुझे करेला बहुत अच्छा लगता है, और उस वो ऐसा नहीं चलता है। बोलने में क्या है, तो बोलते बोलते खाने लगेंगे आप, तो शरीर के लिए तो अच्छा ही है ना। नहीं तो फिर दवाई लेनी पड़ेगी, कड़वी दवाई कैप्सूल में। अभी वो अच्छी है कि ये प्राकृतिक जो है, नेचुरल फूड है, खाना है, तो वो अच्छा है। समझ गए ना अभी। तो हमारी जहां जहां जो जो कमजोरी है उसके विरुद्ध हमें शक्ति मांगनी है, यानी उसके लिए शक्ति मांगनी है कि वो कमजोरी निकल जाए। और वो मांगेंगे तो ये कमजोरी धीमे धीमे चली जाएगी। जैसे कि आप रिपोर्ट लिखते नहीं है तो आपको अंदर से बोलने का मुझे रिपोर्ट लिखना है, क्योंकि रिपोर्ट के बहुत अच्छे ज्यादा फायदे है। दादा आप मुझे शक्ति दो, फिर हो जाएगा। खाने का चूकते हैं, सोने का चूकते हैं, स्नान करने का चूकते हैं, ऐसा है। आप तो जैसे स्कूल में हर रोज हॉलीडे करेंगे तो क्या होगा? हमारी पढ़ाई बिगड़ेगी। हाँ, हमारी क्या? पढ़ाई बिगड़ेगी। हाँ, तो ये रिपोर्ट अगर आप नहीं भेजेंगे, कभी रिपोर्ट रह गया तो वो अलग बात है। आप तो कभी कभी लिखते हैं रिपोर्ट, तो क्या होगा? समझ में आया? और ये कमजोरी है, लेकिन उसको हमें सुधार लेनी है, तय कर करके। समझ में आया? हाँ। सुपर ब्रेन योगा किसने नहीं किया? सुपर ब्रेन योगा किसने नहीं किया? ये स्मार्ट लोग ही नहीं करते तो फिर बुरे लोगों की तो क्या हालत होगी। आरुष आपने नहीं किया, देव ने नहीं किया, खुशी ने नहीं किया, हिताक्षी बार ने नहीं, अपना करिश्मा ने नहीं किया, दर्शना ने नहीं किया। मैंने किया अब है। नहीं ना, आपकी बात नहीं, करिश्मा तो गलती से आ ठीक गया। है दीपक दादा, वो तो अभी अनुज के घर चलने वाली है, तो अभी उसको तो छुट्टी हो गया अभी। अच्छा दर्शना बेटे, सब लोग जिन्होंने नहीं किया, आप जैसे वो बात में जाए ना, सुबह में स्नान करने को तो पहले वो कर लेने का, फिर बात करने का। नहीं चलता है ऐसा? चलता है, हाँ, चलता है। करो फिर। अरे उसका फायदा तो आप पागल सा हो जाएंगे, उसका इतना फायदा है। मैं इतना बुढ़ा हो गया फिर भी मैं करता हूँ। ओके, समझ में आया? बुढ़ा दिखता नहीं हाँ। उसका मतलब नहीं कि बुढ़ा नहीं हूं मैं। ख्याल में आया? हाँ। तो सुबह में स्नान करने से पहले 11 करने में कितना टाइम लगता है? नॉट इवन 5 मिनट्स, टू नो नो 3 नो नो, मिनट्स ओनली। हाँ 2 मिनट में हो जाता है। 2 वही तो मैं मिनट बोलता भी हूँ नहीं ना, लगते। हाँ, मुझे तो इतना फायदा मिलता है ना, तो मैं दिन में 2-3 बार कई बार कर लेता हूँ। एक बार तो करता ही हूँ 11 राउंड का। तो अभी तय करो, मुझे ये करना है। फूड टेस्ट मम्मी को पूछना है। देखो अभी से आपकी जानकारी ऐसी अच्छी हो जाएगी ना खाने के संबंध में, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। केशव दादा, जो आप शॉर्टली है अभी आता है 10 मिनट, हाँ ये सब आपने सुना, थोड़ा बोल लो, बात में 2 क्वेश्चन है वो लेंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। दीपक दादा ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो भी अगर हमको अच्छा लगता है और हम वो खाते हैं, पर हमको कुछ भी करना हो तो सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि हम सब बहुत विचारशील लोग हैं, हम इंटेलिजेंट है, हम एजुकेटेड है, हमको सब कुछ पढ़ाई में सिखाते हैं।
और इतनी बड़ी हमको ट्रेनिंग मिल रही है, तो हमको हर एक प्रकार का खाना खाना चाहिए। उससे क्या हमारी हेल्थ बढ़ती है। मैं एक इंस्टीट्यूट में गया था, तो उधर मैंने आपकी उम्र के छोटे छोटे बच्चों को देखा, तो वो उनको इंसुलिन लगाना पड़ रहा था। वो तो उनके पास क्या? इंसुलिन, क्योंकि डायबिटीज आपकी एज में ही बढ़ गई थी। ऐसे कई बच्चे आए थे, तो वहां पर उनको पता है ट्रीटमेंट में क्या दे रहे थे? करेला, टमाटर और ये उसका जूस बना के उनको कंपलसरी पिला रहे थे। तो उससे क्या है कि पूरा इंसुलिन उनका बंद हो रहा था। उनका 20-20 दिन, 30-30 दिन, 2-2 महीने तक उनको अगर ऐसा हम ट्रीटमेंट लेवे तो जाके अंदर, तो हमको पहले पता ही नहीं होता है कि हमारा कैसे इलाज होता है। तो अगर हमको डायबिटीज नहीं चाहिए या बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं चाहिए, तो हमको हर एक प्रकार के खाने में से ऐसे तत्व मिलते हैं जो हमको हर एक बीमारी से बचा सकते हैं। तो उनका कहना एक ही था कि अगर हमारी उम्र 50 साल हो, 100 साल हो, 80 साल हो, तो हम हेल्दी होके मरे, ऐसे नहीं मर जावे। जब थोड़े टाइम के बाद कुछ बीमार हो गए, पूरा शरीर में कोई तकलीफें आ गई, कोई जात की अलग अलग टाइप की कोई बीमारी आ गई, फिर उनकी दवाइयां करो, फिर उनकी दवाइयों में फिर धीरे 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 हमारा देह छूट जाता है। तो साइंस क्या बोलती है कि भले हमारी जितनी भी भगवान ने उम्र दी हो, हमारी जो भी आयुष हो हमारा, पर हम हेल्दी होके मरना चाहिए। ऐसा अनहेल्दी होके हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। तो वो जब आप इसी उम्र से आप लक्ष्य में रखोगे कि मुझे हमेशा हेल्दी रहना है, तो आपके सामने जो भी टेबल पे आता है, फिर चाहे आपको अच्छा लगता हो कि नहीं अच्छा लगता, आपको खाना चाहिए। क्योंकि आपको तो एक बात तो श्योर है कि जो मम्मी आपको खाना बना के देगी, कोई ऐसा वैसा तो नहीं बना के देगी ताकि आपको कोई तकलीफ हो या आप कुछ बीमार पड़ जाओ। ऐसा खाना बना के देगी क्या मम्मी? बताओ। नहीं। तो वो भी मम्मी को तो सब पता है कि हर एक सब्जी में, हर एक चीज में कौन से तत्व पड़े हुए हैं और कैसे कैसे वो अंदर काम करते हैं। तो वो उनको पता होने की वजह से मम्मी आपको हर एक प्रकार का खाना बना के देती है। कभी रोज सेम खाना नहीं देती है आपको, एवरी डे समथिंग न्यू। तो वो हर क्यों हम न्यू न्यू बताते हैं, क्यों बनाती हैं? क्योंकि हर एक नई सब्जी में, हर एक नई चीज में कुछ ना कुछ ऐसे तत्व है जो हमारे शरीर के लिए हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो उसको वेलकम करना चाहिए। और उसको जो भी टेबल पे आया, वो दादाजी का भी नियम था। दादाजी का भी एक ही नियम था, कभी उनकी थाली में कोई भी चीज आई तो ऐसा नहीं बोलते थे कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये बाहर निकाल दो, ये मेरे को दो, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जो भी, इवन दादा को केरी का रस बहुत अच्छा लगता था, तो भी वो ऐसा बोलते थे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे रोज रोज केरी का रस दो। तो कई लोग, कोई महात्मा रोज रोज दादाजी को केरी का रस देते थे, तो बोलते कि मेरे को इतनी जरूरत ही नहीं है, जितना मुझे जरूरत है मैं खुद ले लूंगा। पर उसमें क्या करते थे कि कौन सी चीज में कितना भी एक्सेस नहीं जाना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। तो जो चीज बहुत अच्छी लगती हो, हमको जलेबी अच्छी लगती हो तो हमको बहुत खाने की, 10-10 खाने की। और करेला अच्छा अगर नहीं लगता हो तो नहीं खाने का। हर एक चीज को बैलेंस रखने का और हर एक चीज में सिंसियरिटी रखने की। क्योंकि जब सिंसियरिटी होगी, नॉर्मलिटी होगी और बैलेंस फूड होगा, तभी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और हेल्थ अगर अच्छी रही तो आप हर एक डायरेक्शन में, अपनी पढ़ाई में, अपने व्यवहार में, अपने काम में बहुत अच्छी तरह से सिंसियरिटी से बहुत आगे बढ़ सकते हो। किसी भी एक जगह पे डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। खाली पढ़ाई पढ़ाई करो तो पढ़ाई में डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। दुनिया की हर एक चीज से अक्वेंटेड होना चाहिए कि खाने की इंडियन बातों से हमको क्या लाभ मिलता है, उसका भी स्टडी होना चाहिए। पर हर एक चीज में ख्याल रखना चाहिए कि मेरे मम्मी जो हमको बना के दे रही है वो बहुत ही सिस्टमेटिक और डाइट फूड है और सिस्टमेटिक फूड है। चाहे मुझे लाइक हो या नहीं लाइक हो, उसको बिना किसी विचार के आपके टेबल पे आ गया तो मतलब आपको अंदर उसकी रिक्वायरमेंट है, जरूरी है। उसको सिंसियरिटी से और दादा की प्रसादी समझ के खा लेना चाहिए। ख्याल आ गया? क्या कह गया? ओके दर्शना। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा ये क्वेश्चन था कि सरसों के साग में कौन सा रस होता है? हाँ, उसमें तो जो सरसों के साग में जो रस होता है
वो हमारे बॉडी को, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है ना, वो हमारे बॉडी को इतना हमको हेल्प करती है, हमारी स्किन को अच्छा करती है, हमारे डाइट सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छा होता है सरसों का साग। और जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है वो आइस के लिए बहुत अच्छी होती है, आइस की कोई भी तकलीफ नहीं होती है। जैसे पालक है, सरसों का साग है, मेथी है, इन सब में से ये आंखों को बहुत ही अच्छा विटामिन देती है। तो और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। ओके तो अभी यो तो सब किधर भी आप देखेंगे तो बोलका ग्रीन 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 खाने का। ओके ममता बहन आपको क्वेश्चन है? हाँ, जय सच्चिदानंद केशव बोलिए। दादा। जय सच्चिदानंद। कहाँ पर हो? जब अब बात हो रही थी कि बच्चे टीवी देख के खाना खा रहे, तो अभी अनुज कभी कभी हट करता है खाने के लिए, तो मैं दादा का सॉन्ग्स लगाती हूँ, जो वीडियो श्रीमंत स्वामी आते हैं। तो हाँ। सही है क्या, ऐसे दिखा के खिला सकते हैं बच्चों को कि? हाँ, नहीं बहुत अच्छा है। पीछे दादा भगवान का असीम जय जयकार हो या कुछ भी ऐसा दादा का पद, कविराज का पद चलता हो, तो उसी समय वो पीछे बैकग्राउंड में जो कान में वो जो वॉइस जाता है, वो अंदर बहुत ही हेल्पफुल होता है। इंस्टेड ऑफ टीवी तो जहर है। वो तो हमारे दादा बोलते कि उपयोग बगैर खाना खाने से तो सीधा हार्ट अटैक हो जाता है। अगर आप खाते समय उपयोग आपका टीवी में होएगा या दूसरी चीजों में होएगा, या आप बात करोगे, तो वो खाना जो अमृत जाके बनना चाहिए उसकी जगह वो जहर बन जाता है, पॉइजन बन जाता है, और इतना फिर बॉडी पे इफेक्ट करता है कि आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। और हार्ट अटैक का आने का कारण ही ये है कि आप खाना उपयोग पूर्वक नहीं खाते। तो वो टीवी तो समझने का हमारे लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर हमारे को अच्छी हेल्थ चाहिए, हमारी लाइफ बहुत आदर्श जीवन जीना है, और हमको दादाजी के कहने के हिसाब से जीना है, तो क्या दादाजी हमको किसी न किसी को हमेशा लाइफ में मॉडल बनाने का, तो दादाजी को अगर आपने मॉडल बनाया है तो आपको हमेशा ये लक्ष्य रखने का कि दादा, किसी से बाप पुत्र से पूछ लेने का कि दादा खाते समय टीवी देखते थे, तो बोलेंगे दादा ने टीवी देखा ही नहीं था। देखेंगे खाना तो दादा तो बात भी नहीं करते थे। कैन यू बिलीव? दादा के टेबल पे जब खाने का टेबल पे वो थाली लग जाती थी और हम नीचे इधर आजू बाजू सब लोग बैठे हुए होते थे, तो ना किसी से बात करते थे, ना किसी से पूरा ध्यान वो थाली में था, वो क्या खा रहे हैं, कौन खा रहा है, और हर एक बाजी में कौन सी टेस्ट आ रही है, कौन से तत्व है। चाहे नमक उसमें कम हो तो भी ऐसा नहीं बोलेंगे आज खाने में नमक क्यों कम डाला। वो तो हिसाब से आया है, जितना नमक जरूरी था उतना ही आया है। तो इतना साइंटिफिकली और इतना सिस्टमेटिक दादा खाना खाते थे, तो हम देख के खुश होते थे कि ये किस तरह से। हम तो नॉर्मली, हमने जब तक दादा भगवान को नहीं देखा था तो हम भी ऐसे ही खाते थे, टीवी चालू करके बैठ जाते थे, कभी किसी से बातें करते करते खाते थे, और खाने के बाद तो पता भी नहीं चलता था कि हमने क्या खाया। तो जब हमको खाने के बाद पता भी नहीं चले कि हमने क्या खाया, तो समझो वो खाना पूरा अमृत बनने की जगह पे पॉइजन बन गया। और दादा बोलते हैं कि उपयोग पूर्वक खाना खाना चाहिए, और अगर उपयोग के सिवा खाना खाते हो तो आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, आपकी हेल्थ तो कभी सुधरेगी ही नहीं लाइफ में। और अगर हमारी हेल्थ नहीं बनेगी तो हम अपना कौन सा काम अच्छी तरह से कर सकेंगे। आप इमेजिन करो कि आपकी तबीयत खराब हो गई, फिर आपको कोई भी चीज अच्छी लगेगी? खाना तक भी अच्छा नहीं लगेगा, गेम खेलना अच्छा नहीं लगेगा, टीवी खेलना अच्छा नहीं लगेगा, किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर किसी को भी रिकलेक्ट करना हो कि कभी आपकी तबीयत खराब होती हो, तो आपको क्या लगता है, कैसा लगता है? ममता कोई आपका बहन friend मालूम आपसे पड़ा? मिलने को भी आएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ तो अभी हमारा तो एक्सपीरियंस है कि जो बच्चे को टीवी करके इतना छोटा में कर बताएगा ना, तो बाद में वो कुछ नहीं खाएगा अनलेस यू टर्न ऑन द टीवी। वो आदत पड़ जाएगा ना, तो वो तो आदत निकालने का बहुत मुसीबत है, बहुत हमको difficult होगा। एक्सपीरियंस है। तो ओके और दक्ष वो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक महात्मा है, वो बहुत ज्ञान में रहते, बहुत ज्ञान में रहते, पर बचपन से उनको टीवी देखने का बहुत शौक पड़ गया। तो आज वो 80 इयर्स के भी हो गए ना, तो भी उनको
ज्ञान में तो बहुत रहते, पर तो भी उसको खेच होती है, फिर कभी कभी वो न्यूज चला के बैठ जाते हैं। तो वो क्या है, बचपन से बहुत आदत पड़ गई कि न्यूज देखने में मजा आता है, इसमें देखने में मजा आता है। तो वो आदत जो अभी दादा ने बताया ना कि वो आदत पड़ जाएगी तो वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगी, 80 इयर्स तक भी नहीं निकलता है। आप ओके, समझे? एक दक्ष को कभी दक्ष क्या बोला, केशव दादा ने क्या बोला, टीवी वॉच करते क्या होता है खाने के लिए बाद तब? अपन को कोई भी चीज पता नहीं चलती है और अपन को पता ही नहीं चलता अपन ने क्या खाया है। और पहले क्या बोला उन लोग कि टीवी देखता है तो क्या पी से बोला, वो क्या होता है, किसको मालूम, याद है? और अपन को हार्ट अटैक भी आ सकता है। नहीं, दर्शना क्या बोला, पी पॉइजन बन जाता है जो अंदर खाना पॉइजन बन जाता है। पॉइजन का मालूम है दक्ष क्या होता है? हाँ, क्या होता है पॉइजन? कोई भी आपको पेट में जाके वो चीज खराब हो जाती है। केशव दादा उसको बोलो कि पॉइजन का क्या मीनिंग होता है। हाँ, पॉइजन मतलब क्या कि सपोज जब अमृत होता है तो कितना मीठा होता है, तो पॉइजन कितना जहर जैसा होता है। वो जहर मतलब क्या, आदमी को मार डालता है। जहर उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जहर बन जाता है। जहर मतलब वो अंदर बॉडी से पूरा उनको जला देता है, खलास कर देता है। इतना उसका अंदर बहुत रॉन्ग इफेक्ट होता है, उसको पॉइजन बोला जाता है। आप इमेजिन कर सकता है कि टीवी आपको अंदर क्या करते हैं अभी? तो अभी देखेंगे अभी टीवी दक्ष? ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, હવે आपका भी टाइम हो गया।